Welcome, beloveds. In today's session and in the following sessions, I will be explaining you about stress and how one can cope with stress. So, get your diary and pen and make yourself 100% accountable for everything that you are going to learn in all the sessions of stress and stress management. And please do share with everyone, including your children, because I'm sure this is going to be helpful to each one of us. In this session, you will learn about stress, meaning of stress, what are stressors, and when one confronts the stress or encounters stress, what are some of the reactions of body and brain towards the stress. Now, we all know that stress is an inevitable part of our lives. No matter how much security we create around us, no matter with what accuracy we predict events or control events or manipulate certain things, stress is an inevitable part of our life, right? And it also varies from people to people. For some people, certain situations, certain events, certain type of episodes are likely to create more stress, whereas the same events, situations, circumstances may be less stressful to other people. Now here a lot of factors play a role. So for example, their nature, their personality, their temperament, their biological disposition, their upbringing, their environment, and most importantly, their attitudes, belief systems, and their perception towards life in general, but towards those events. So, a lot of factors are involved. Second thing is that for some, the same event could create lot of stress, meaning the stress also has to do with the intensity. So some may experience it at a very high intensity, whereas for others it is not a problem at all. The conclusion of this is that stress, being an inevitable part of life, one needs to learn to navigate through stressful times or situations. We need to learn to be more adaptive towards stress or in dealing with stress, and over time will become more effective. Now, in today's distractive world, it is very, I won't say very easy, but it's I won't say simple, but it's quite easy to be distractive and in dealing with stress and other difficult emotions in unhelpful ways. But this will create a lot of problem, speaking at a psychological level. So for example, like I said, for same stress people will have different types of responses, but you may not know, or you may not know that your response towards that particular stressor is creating a healthy psychological state of yours or unhealthy psychological state. So that is very important to understand. Suppose when you are in stress, then first you need to figure out what all things you do. Let's start at a behavioral level, because it might be little easy for you to observe behaviors, or at least to become aware of the behaviors. So when you are in stress, do you get into binge watching? When you are in stress, do you get into more of the screen time and watching unhelpful contents? When you are in stress, do you isolate yourself from people for quite a very long time? When you are in stress, do you continue feeling anger, irritation, annoyance, frustration for more than 2 to 3 days, and it is quite persistent? Your sleep, your appetite changes, or do you get into emotional eating episodes, or do you start getting more socialized than you used to? So
or you are more into getting or doing some things of which even you are not aware. So you have to figure out those behaviors, and then you have to discriminate very well that whether such behaviors, such mindset, such thoughts and attitudes is creating a healthy psychological state or unhealthy psychological state. One point to understand, to be clear with this differentiation is this, that if you are overcoming, if you are dealing basically and therefore overcoming, so if you are dealing with what needs to be dealt with and you are aware about the consequences and still you are choosing to go for it, that's how you will make yourself accountable for your own well-being. But if you are dealing with the problem or the stressor which is creating stress for you, and step by step you are following it, plus you are being mindful of your psychological health, then you are taking appropriate steps. And if you are just getting more and more distracted, more and more numb, okay, मीन्स कि अगर हमें चोट लगी है तो हम सिर्फ उस पर ऑइंटमेंट लगाते जा रहे हैं लेकिन उस घाव को भर नहीं रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग अनहेल्दी साइकोलॉजिकल स्टेट. भले आप बाहर से दुनिया में इफ़ेक्टिवली कहीं ना कहीं एडेप्टिव हो रहे हो, क्योंकि वो तो हमारे ब्रेन एंड बॉडीज़ बने ही ऐसे हैं कि वी विल गेट एडेप्टिव टू इट, बट वो घाव को, वो वुंड को आप ठीक नहीं कर रहे हो, प्लस यू आर जस्ट नंबिंग इट एंड एडिंग मोर थिंग्स टू इट. Well, shopping is also one thing and few others, then you are creating an unhealthy psychological state. तो ये सब समझ के you have to learn to identify your stressful response, and in the sessions you will learn what is stress and how to deal with it. So the meaning of stress as given by World Health Organization is this: a stress is a state of worry or tension in response to a difficult situation. Like I said, difficult situation हम सबके लिए अलग अलग रहेगी, तो किसी को खुद को भी या किसी को भी जज नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लाइक योर पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन, योर टेम्परामेंट, योर अपब्रिंगिंग, योर एनवायरनमेंट अराउंड यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली with all of these factors, the kind of belief system, attitudes and perceptions you have created in the early developmental years of your life. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है. ओके, तो जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है और अगर हम डील नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम जो टेंशन एंड वरी क्रिएट होता है हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में, उसको स्ट्रेस कहते हैं. ओके, सेकेंड थिंग अबाउट स्ट्रेस इज आवर रिस्पॉन्स. सो जब हमारा रिस्पॉन्स किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके कैसा होता है, इट बिकम्स, अगर हमें लग रहा है कि ये डिस्रप्टिव है या थ्रेट है टू, और इट इज़ थ्रेटनिंग टू डिस्टर्ब आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. मतलब कि हमारे आगे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए एक ख़तरा है, ठीक है, हमारे फिज़िकल थिंग के लिए, और मतलब फिज़िकली एंड मेंटली ये चीज़ हमारे लिए डेंजरस है और कुछ बड़ा सा नुकसान कर देगा या हम कुछ खो देंगे, तो भी हमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. नाउ व्हाट आर स्ट्रेसर? सो स्ट्रेस इज़ अ रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट आर स्ट्रेसर? स्ट्रेसर का मतलब होता है कि एनी इवेंट और सिचुएशन which is likely to threaten our functioning. अब वो इवेंट एंड सिचुएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो पॉजिटिव स्ट्रेसर जैसे कि अचानक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग रहा है, मतलब आपने काफ़ी टाइम से एक रिजेक्शन एंड फेलियर ही देखा है, आप भले ब्रेवली लाइफ को फेस कर रहे हो और समय की लेट्स से रिस्पेक्ट करते हुए भी चल रहे हो और आपने अपने आप पे काम किया एंड एवरीथिंग, बट सडनली सपोज़ कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि एक एंग्जाइटी आ जाती है कि व्हाट इफ़ दिस विल गेट ओवर,
और या फिर मेरे साथ ये इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर इतना अच्छा हो क्यों रहा है, ये सब के लिए तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प सेपरेटली लेने की ज़रूरत है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो जब हमें अचानक हमारी लाइफ में सब अच्छा होता है, या हम जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं जिसके लिए सपोज सालों से मेहनत की हो आपने, और सडनली वो अपॉर्चुनिटी अपीयर हो रही है। सपोज़ कि आपको न्यू जॉब एक मिल रही हो, या फिर आप एक नया प्रोजेक्ट या नया सेटअप कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली या आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी हो, तो ये सब पॉजिटिव स्ट्रेसर है, मतलब हैप्पी इवेंट्स है, बट इट कुड स्टिल क्रिएट सम स्ट्रेस, राइट। जैसे कि जो मदर्स, न्यूली मदर्स बनते हैं, इट्स अ वेरी हैप्पी इवेंट, बट उसको फिर भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस तो रहता है। सो दैट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रेसर। उसी तरीके से नेगेटिव स्ट्रेसर्स तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी फेस करते ही हैं। तो नेगेटिव स्ट्रेसर्स में पूरा कम्प्लीटली ऑपोजिट जो है ऑन द नेगेटिव साइड। सो इसको स्ट्रेसर कहते हैं, मीनिंग एनी इवेंट और सिचुएशंस इन आवर एनवायरनमेंट जो दैट causes stress, and it could be positive as well as negative. Now most important thing is this, that although stress is a common part of our life and everyone experiences it at a different level because of the intensity and because of the way you respond to it. So stress, what makes a big difference in our approach to stress is the way we respond to stress. That is very very important. ये आगे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, but the way we respond to stress, that makes a different experience for all of us, and that makes a big difference. नाउ स्ट्रेसर, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव स्ट्रेसर हो या नेगेटिव स्ट्रेसर हो, बट कोई भी स्ट्रेसर मतलब कि एनी इवेंट और सिचुएशन विच कॉजेज स्ट्रेस टू अस, उसकी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो फर्स्ट वन इज़ दैट वो जो स्ट्रेसर है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है वो काफ़ी इंटेंस होता है. मतलब हमें बहुत ही इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस, और बहुत ही हम बर्डनड होते हैं, ओवरलोड हो जाता है. मतलब कि हम वी आर नो लॉन्गर एबल टू एडेप्ट टू दैट स्ट्रेसर, इतना इंटेंस हो जाता है और इसलिए फिर हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. सेकेंड इज़ इट इन्वोक्स इनकम्पैटिबल टेंडेंसीज. कंपैटिबल का मतलब होता है मैच, मतलब सिमिलर है. इनकम्पैटिबल उसका ऑपोजिट हुआ कि मैच नहीं हो रहा है, सिमिलर नहीं है, मतलब ऑपोजिट है. तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेज शुरू हो जाता है. मतलब कि मैं अगर इस चीज़ को सामना करूं या इस चीज़ से भागूं, और दोनों ही चीज़ भी अगर हो रही हो तो कॉन्फ्लिक्ट है ना. जैसे कि मन में कुछ है और बाहर आप कुछ दूसरा बिहेवियर कर रहे हो, मतलब चाहते कुछ हो कुछ और रहा है. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. दूसरा कि आपके मन में कुछ है लेकिन किसी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो या उस हिसाब से आप बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ, क्योंकि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और चल रहा है. तो ये सब हो गया इनकम्पैटिबल टेंडेंसीज, मतलब हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होगा. तीसरा कि अगर हम प्रेडिक्ट, कंट्रोल या एलिमिनेट नहीं कर पाते तो भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा. ये भी हमारा नेचुरल बिल्डअप है कि हमारा ब्रेन ही ऐसा बना है कि उसको प्रेडिक्शंस के हिसाब से वो चलता है. तो अगर वो प्रेडिक्ट कर पाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होगा, या प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड इस तरीके से है, तो वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. ऑफकोर्स आपका कंट्रोल है बाय द वे यू रिस्पॉन्ड एंड आप क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हो. बट मैं इनिशियल प्रोसेस का बता रही हूँ क्योंकि हमारा ब्रेन एंड स्पेशली जो सबकॉन्शियस पार्ट है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द डेंजर, क्योंकि ये हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग लेवल है कि उसको हमें बचाना है, मतलब वो हमारे सर्वाइवल के हिसाब से चलता है. और माइंड उसको सपोर्ट करता है कि हम सेफ रहे. ओके और हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न ही इस तरीके से रहा है. सो देयरफॉर ये जब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, आपका इनिशियली वो रिस्पॉन्स शुरू होता है, विच इज़ कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स.
नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब भी हम कुछ परसीव करते हैं स्ट्रेसर को, तो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं. फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब कि अभी हम एक पार्ट समझेंगे. तो इनिशियली जब आपके ब्रेन ने डेंजर स्कैन कर दिया और उसने स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट कर दिए, तो इनिशियली आपका रिस्पॉन्स 3 F's में होता है: फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज. फ्रीज यूजुअली एनिमल्स में, बट अभी हम फोकस फाइट फ्लाइट में करते हैं, और 3 ऑफ देम. सो फाइट मतलब कि आइदर आप वो स्ट्रेसर को कन्फ्रंट करोगे, मतलब आप खुद उसको अटैक करोगे. तो सपोज़ कि एंगर है, या आपने किसी को कुछ चिल्ला के बोल दिया, या फिर आपने उस पर एक्चुअली रिएक्ट किया. सो दैट इज़ कॉल्ड फाइट. और फ्लाइट मतलब एस्केप है, अवॉइडेंस है, भाग जाना है. अब यूजुअली जिनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, या जो साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रहे ऑफ एंग्जाइटी के, तो कुछ ऐसी इवेंट सिचुएशंस रहते हैं जिनकी थ्रू उनका एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाता है. ओके, तो दे विल मेक श्योर, जो ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है और फीचर ऑफ एंग्जाइटी, दैट दे विल टेंड टू एस्केप और अवॉइड द सिचुएशन. और जैसे ही वो चीज़ को वो अवॉइड करेंगे, जो एंग्जाइटी उनकी ऐसे 100% हाई होती है, राइज अप हो गई होती है, वो इमीडिएटली फॉल हो जाएगी. मतलब एंग्जाइटी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से उन्हें वो घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेट होता है टू बी इन, और वो चीज़ को वो फेस नहीं कर रहे और भाग रहे, तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली, मतलब आपको किस चीज़ का डर है और आप फेस नहीं करोगे तो डर कम ही हो जाएगा. But over the time, in the long run, it's not at all helpful, and it is very very disruptive and destructive psychologically. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो चारों लेवल पे लगेगा. मतलब कि फिज़िकली आपको अलग अलग तरीके से डिस्टर्बेंस होगा, कॉग्निटिवली मतलब मेंटली, बिहेवियरली एंड इमोशनली. इमोशनल पार्ट हम नेक्स्ट में देखते हैं. सो फिज़िकली फॉर एग्जांपल, आप हमेशा वो हाइपर विजिलेंट स्टेट में रहोगे. सो हार्ट रेसिंग है, ड्राई थ्रोट है, नर्वसनेस है, हेडेक है, नॉशियस या वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन है. आपको कोई ना कोई बॉडी एक करता रहता है, जैसे नेक का पार्ट. ये सब सिमिलर टू एंग्जाइटी सिम्टम्स ही है. तो ये सब रिएक्शंस आपके होंगे. एंड कॉग्निटिवली लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, मेमोरी पे इफ़ेक्ट हो रहा है. जब लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई हेल्प तो फिर लेनी ही होती है. एंड एनीवे स्ट्रेस को प्रोलॉन्ग नहीं करना होता, नहीं तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इलनेसेस. एंड लाइफ किलिंग इलनेसेस स्ट्रेस की वजह से होती है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक या हार्ट प्रॉब्लम्स है, एंड मैनी अदर्स. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को समझना, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर वर्कअप करना. दैट इज़ वन थिंग. सो कॉग्निटिवली लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, बहुत ही डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजिकल स्टेट रहता है. इमोशनली आप सारे नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, जो अगर ओवर टाइम कंटिन्यू रहता है तो वो एक पैथोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है. मतलब कि फिर एक मेंटल डिसऑर्डर का फॉर्म ले सकता है. एंड बिहेवियरली, तो जो भी ऑब्जर्वेबल है, या तो आप कोई चीज़ बहुत ही इंक्रीज्ड वे में करो ना, लाइक इमोशनल ईटिंग है, बिंज वॉचिंग है, फाइट्स में आ जाना, आइसोलेशन हो जाना, पुअर स्लीप या एपिटाइट चेंजेस, जो एंड जो करते थे चीज़ें पहले काम की वो अब नहीं कर पाते, या तो बहुत लो जा रहे हो या तो बहुत हाई जा रहे हो. सो दिस आर सम फिज़िकल रिएक्शंस. अब एक जो स्ट्रेस की साइकिल होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, फिज़िकली बॉडी को क्या होता है. साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में एंग्जाइटी, होपलेसनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें रह सकती है. एंड ओवरऑल एक स्ट्रेस की वजह से एक जनरल फीलिंग आ जाती है कि आई एम नॉट एबल टू कोप विद द वर्ल्ड. So in today's session I have
made you understand the meaning of stress and what are some of the physiological and psychological reactions of our brain and body to stress and what are stressors. So your homework is to identify the stressors which are creating stress in your life, and second homework is स्टार्ट वॉचिंग एट योर बिहेवियर पैटर्न्स कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका बिहेवियर क्या होता है, मतलब कि आप क्या क्या करते हो, एंड मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, थैंक यू सो मच.